اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ قیامت کا پہلا دن سب کچھ ایک اچانک دل دہلا دینے والی آواز سے شروع ہوگا۔ جب فرشتہ سور پھونکے گا تو زمین کا پورا نظام ہل جائے گا، پہاڑ ٹوٹ کر روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، اور پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگ ہر طرف سے نکل رہے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف ایک چیز کام آئے گی، صاف دل۔ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، اور کسی کا گلے تک۔ سورج بہت قریب ہوگا اور ہر انسان صرف ایک ہی سوچ میں ہوگا، آج میری نجات کیسے ہوگی؟ یہ ہوگا قیامت کا پہلا دن۔ وہ جسم جو مٹی میں تھا جاگنا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں جڑیں گی، گوشت چڑھے گا، رگیں بنیں گی، چہرہ تیار ہوگا، وہی چہرہ، وہی جسم جو دنیا میں تھا۔ جیسے بارش کے بعد زمین سے سبزہ اگتا ہے، آہستہ آہستہ مکمل طور پر ایک ایک عضو کے ساتھ اربوں انسان ایک ساتھ زمین کے اندر سے مکمل ہو رہے ہوں گے، اور جب ہر جسم مکمل ہو جائے گا اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے۔ اس بار یہ آواز فنا کی نہیں بلکہ حیات کی آواز ہوگی، روحیں واپس آئیں گی اور ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ننگے پاؤں، بے لباس، حیران، گھبرایا ہوا، ہر طرف انسان ہی انسان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ایک ہی میدان میں۔ وہی زمین جو کبھی پہاڑوں سے بھری تھی، درختوں سے ڈھکی تھی، شہروں سے آباد تھی، اب ایک ہموار، چٹیل، لامحدود سطح ہوگی، کوئی سایہ نہیں، کوئی پناہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، اور سورج اس دن اتنا قریب ہوگا کہ اس کی گرمی سے دماغ پکنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیلے گا، اور یہ اس کے گناہوں کے حساب سے ہوگا۔ اس میدان میں کھڑے کھڑے لوگ بے چین ہو جائیں گے، اور تب وہ رشتے جن کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، اس دن انہی سے بھاگنے کی کوشش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر شخص صرف اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا، بس ایک ہی سوچ، میرا کیا ہوگا۔ لوگ نبیوں کی طرف دوڑیں گے سفارش کی امید لے کر، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام معذرت، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت۔ ہر نبی جن کی امتوں نے انہیں پکارا وہ بھی اس دن اپنی فکر میں ہوں گے، اور جب ہر دروازہ بند ہو جائے گا، ہر امید ٹوٹ جائے گی، تب سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اس دن بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حکم سے مقام محمود میں کھڑے ہو کر سفارش فرمائیں گے، جس کا وعدہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا، فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور حساب شروع ہو جائے گا، وہ حساب جس کے سامنے دنیا کی ہر عدالت، ہر فیصلہ، ہر انصاف ایک دھوکہ لگے گا، وہ حساب جس میں بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ ملے گا۔ تو ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ میدان حشر میں ایک شخص اپنے ہی ہاتھوں کی انگلیوں کو پچھتاوے کی شدت سے چبا رہا ہوگا، اور چباتے چباتے کہنیوں تک اپنا گوشت کھا جائے گا۔ اس کا اپنا خون اس کے چہرے اور سینے پر بہہ رہا ہوگا، ہڈیاں ننگی ہو چکی ہوں گی، لیکن اسے اس جسمانی درد کا کوئی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ آج اس کی روح کے اندر ایک ایسی آگ لگ چکی ہوگی جس کی تکلیف جہنم کی دہکتی آگ سے بھی زیادہ ہولناک ہوگی۔ یہ پچھتاوے کی موت ہوگی۔ یہ وہ انسان ہوگا جسے آج جہنم کے شعلے اور ان شعلوں میں اپنا ٹھکانہ بالکل اپنے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور اسے یاد آئے گا کہ وہ اس موت کے گڑھے تک اکیلا نہیں پہنچا، اسے کھینچ کر یہاں تک لانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا وہ قریبی دوست تھا جسے وہ دنیا میں اپنی جان سمجھتا تھا، وہی دوست جس کی محفلوں کی خاطر اس نے نمازیں چھوڑی تھیں، جس کے کہنے پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس کا ساتھ نبھانے کے لیے اس نے دین کا مذاق اڑایا تھا اور گناہوں کو فخر سمجھا تھا۔ آج وہ انسان پاگلوں کی طرح اس بھیڑ میں اپنے اس دوست کو ڈھونڈے گا کہ وہ آ کر اسے اس آگ سے بچا لے، لیکن آج وہی دوست اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہ اس سے نظریں چرا کر اسے جہنم کے کنارے اکیلا چھوڑ کر بھاگ چکا ہوگا۔ تب وہ انسان ایک ہولناک چیخ مارے گا، اپنے خون آلود اور کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا اور چلائے گا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چنا ہوتا، ہائے میرا مقدر، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
उसने तो मुझे हक का रास्ता मिलने के बाद भी अंधा कर दिया। उसने मुझे तबाह कर दिया। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और गुस्से में अपने ही बाजुओं को मजीद चबा डालेगा। लेकिन आज उसका अपना बहता हुआ खून और उसके आंसू उसे जहन्नम की इन बेड़ियों से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो कुरान जिसे उसने दुनिया में पसे पुष्ट डाल दिया था, आज उसके सामने एक खौफनाक हकीकत बनकर खड़ा होगा। और शैतान इंसान को वक्त पर धोखा देकर बेयार और मददगार छोड़ देता है। दुनिया की वो झूठी दोस्तियां जिन पर उसे कल तक हुरूर था, आज आग की भारी जंजीरें बन चुकी होंगी और वो इंसान अपने कटे हुए हाथों के साथ अपने उस दोस्त को कोसता हुआ सीधा जहन्नम के उस तारीक गड्ढे में गोता खा जाएगा, जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं। 70,000 भारी जंजीरों से जकड़ी हुई जहन्नम को फरिश्ते खींच कर लाएंगे। वो भूख और गुस्से से इतनी पागल होगी कि जंजीरें तरवा कर इंसानों पर झपटने की कोशिश करेगी। उसके अंदर से निकलने वाली एक एक चिंगारी बड़े बड़े जर्द महल्लात की तरह हुआ में उड़ रही होगी। जब वो दूर से हशर के मैदान में खड़े इंसानों को देखेगी तो एक ऐसी हौलनाक धाड़ मारेगी जो सीधा इंसान का दिल चीर देगी। उस धाड़ की हैबत और दहशत से मैदान हशर में खड़े अरबों इंसान फौरन घुटनों के बल जमीन पर गिर जाएंगे। हर एक जंजीर को 70,000 इंतहाई ताकतवर फरिश्ते पूरी कुव्वत से खींच रहे होंगे, लेकिन जहन्नम की वहशत और उसका जोर इतना ज्यादा होगा कि वो फरिश्तों को घसीटती हुई मैदान की तरफ बढ़ने लगेगी। उसकी तपिश इस कदर खौफनाक होगी कि मीलों दूर खड़े लोगों के चेहरों का गोश्त पिघलने लगेगा और उनका अपना ही पसीना उबलने लगेगा। ये वो हौलनाक लम्हा होगा जब हर नबी, हर वली और हर शहीद खौफ से कांप रहा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके लिए दुनिया में आग को ठंडा कर दिया गया था, आज वो भी अपने घुटनों के बल गिरे पुकारेंगे, नफसी नफसी, ए मेरे रब, आज बस मेरी जान बचा ले। मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें कलीमुल्लाह का शरफ मिला और जो फिरौन के सामने नहीं घबराए, आज उन पर भी ऐसी दहशत तारी होगी कि पुकार उठेंगे, नफसी नफसी, आज मैं किसी और का सवाल नहीं करता, बस मुझ पर रहम फरमा। जब कायनात की सबसे बरगुजीदा हस्तियों का यह हाल होगा तो उस दिन हम कमजोर गुनाहगारों का क्या बनेगा। इंसान खड़ा कांप रहा होगा, उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह जाएंगी और दिल उछल कर सीधा गले में आ फंसेगा। वो जान बचाने के लिए पीछे भागना चाहेगा, लेकिन हर तरफ फरिश्ते दीवार बनकर खड़े होंगे, फरार का कोई रास्ता नहीं होगा। जहन्नम की आग दूर से ही अपने मुजरिमों को सूंघ लेगी। वो चीख चीख कर अपने रब से इजाजत मांगेगी, ए मेरे रब, मुझे छोड़ दे, आज मैं उन तकब्बुर करने वालों की हड्डियां चबा लूं। उसके भड़कने और उबलने की आवाज बादलों की गरज से 1000 गुना ज्यादा हैबतनाक होगी। और वो इंसान जो दुनिया की चंद कोड़ियों और झूठी ताकत पर फिरौन बने फिरते थे, आज उस दहकते हुए खूनखार जबड़े के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े मौत की भीख मांग रहे होंगे। जहन्नम में वहशतनाक भूख की वजह से इंसान अपना ही गोश्त नोच नोच कर खाने लगेगा। जहन्नम की सबसे निचली तह से एक दरख्त उगेगा, दरख्त ज़क्कूम। इसकी जड़ें जहन्नम की दहकती आग के बिल्कुल बीच में होंगी। इसकी शाखें और फल ऐसे होंगे जैसे बदसूरत शैतानों के सर। इन फलों में इंतहाई जहरीले, सख्त और नोकीले कांटे होंगे, लेकिन भूख की शिद्दत, दर्द और वहशत इतनी ज्यादा होगी कि इंसान अंधों और पागलों की तरह उस दरख्त पर टूट पड़ेंगे। वो इन कांटेदार फलों को चबाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो जहरीला और कांटेदार फल हलक से नीचे उतरेगा, वो गले की नाली को चीरता हुआ अंदर का गोश्त फाड़ता हुआ जाएगा। इंसान का सांस रुकेगा, वो दर्द से उसे अगलना चाहेगा, लेकिन वो हलक में बुरी तरह फंस जाएगा और जब वो बमुश्किल उसे निगलकर पेट में उतारेगा, पेट में पहुंचते ही ये फल उबलते हुए तेल और पिघले हुए तांबे की तरह खोलना शुरू कर देगा। इंसान के पेट के अंदर लावा उबलने लगेगा। वो दर्द से धोरा होकर जमीन पर लौटेगा और उसकी हौलनाक चीखों से जहन्नम की दीवारें गूंज उठेंगी। इस पेट की आग और ज़क्कूम के उबलने से उन पर एक नया अजाब जन्म लेगा, प्यास। एक ऐसी प्यास कि अगर दुनिया के सातों समुंदर भी मिल जाएं तो उसे ना बुझा सकें। इंसान तड़प कर गिड़गिड़ा कर पानी मांगेगा, तब जहन्नम के फरिश्ते लोहे के गर्म प्यालों में उन्हें पानी पेश करेंगे। जहन्नमियों के जलते हुए जिस्मों से निचड़ा हुआ पीप, खून और खोलता हुआ सियाह पानी। वो पानी इतने खौफनाक दर्जा हरारत पर खोल रहा होगा कि जैसे ही पीने के लिए प्याले को चेहरे के करीब लाएंगे, इसकी हौलनाक तपिश से चेहरे का सारा गोश्त, होंठ और गाल पिघलकर उसी प्याले में गिर जाएंगे। इंसान अपने ही चेहरे की हड्डियां देख सकेगा, लेकिन प्यास की वहशत इतनी होगी कि वो अपना ही पिघला हुआ गोश्त और वो खोलता हुआ लावा एक ही सांस में पी जाएगा, बिल्कुल किसी प्यासे और बीमार ऊंट की तरह। ये खोलता हुआ पानी हलक से नीचे उतरते ही अंदर की हर चीज को गिलाकर रेजा रेजा कर देगा। मायदा और आंतें कट जाएंगी और पिछले रास्ते से कट कट कर खून के साथ बाहर आग में गिरने लगेंगी। पेट के अंदर ज़क्कूम के कांटे, हलक में उबलता हुआ पानी और बाहर दहकती हुई आग के शोले। इंसान दर्द और बेबसी से चीखेगा। वो जहन्नम के दारोगा फरिश्ते मालिक को पुकारेगा, ए मालिक, अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे, हमारा किस्सा खत्म कर दे। लेकिन हजारों साल के बाद एक ही हैबतनाक और मायूस कुन जवाब आएगा, तुम्हें यहीं इसी हाल में रहना है, क्योंकि इस जगह तकलीफ की कोई इंतहा नहीं और वहाँ मौत को भी मौत आ चुकी होगी। जहन्नम के बिल्कुल ऊपर एक पुल बिछा दिया जाएगा, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज, पुल सिरात।
नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, बस हौलनाक आवाजें होंगी, जहन्नम की दहकती हुई आग की धार और शोलों का वो शोर जो दिमाग की रगें फाड़ दे। इसी अंधेरे में नीचे से लोहे के बड़े बड़े कांटे निकलेंगे जो अंधेपन में इंसानों के गोश्त को टटोल रहे होंगे। ये कांटे खारदार झाड़ियों के नोकीले कांटों की तरह होंगे, लेकिन उनका साइज और हैबत सिर्फ अल्लाह जानता है। जब ये अंधेरे में किसी गुनाहगार को जकड़ेंगे तो सीधा उसके गोश्त को फाड़ते हुए हड्डियों तक धंस जाएंगे। जिस्म खिंचेगा और इंसान चीखता हुआ नीचे आग के उस समंदर में गोता खा जाएगा जिसकी तह तक गिरने में 70 साल लग जाएंगे। कोई कांटा किसी को नोचकर जख्मी छोड़ देगा और वो लहूलुहान होकर अपना ही खून बहाते हुए आगे की तरफ खिसटेगा। नीचे से उठने वाली आग की लिपटें इतनी ऊंची होंगी कि उनकी तपिश पुल पर रेंगने वालों की खालें झुलसा रही होंगी। इंसान का अपना पसीना और खून इस पुल को मजीद फिसलुआ बना देगा। एक कदम आगे बढ़ेगा तो वो तलवार से तेज धार पांव के तलवों को 2 हिस्सों में चीर देगी। वो दर्द से तड़प कर अपना तवाजुन खोएगा, जान बचाने के लिए नंगे हाथों से उस धार को पकड़ेगा और उंगलियां कट कर गिर जाएंगी। ऊपर मौत का अंधेरा, नीचे दहकता हुआ लावा और दरमियान में कटते हुए आज़ा की हौलनाक बेबस्तीत। हुक्म होगा, गुजरो इस पर से। इस दिन कोई सूरज या चांद नहीं होगा, सिर्फ अपने आमाल का नूर होगा, जिसकी रोशनी पहाड़ जितनी होगी वो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। जैसे आसमान पर बिजली चमकी और गायब, कोई तेज हवा की तरह तो कोई दौड़ते घोड़े की तरह पार होगा। लेकिन जिनके आमाल कमजोर होंगे, कदम लड़खड़ाएंगे, उनके पास सिर्फ इतनी रोशनी होगी जो पांव के अंगूठे पर जलेगी और बुझ जाएगी। एक कदम रोशनी में उठेगा और अगला अंधेरे में पड़ेगा। वो घुटनों के बल घिस रहे होंगे, तेज धार उनका गोश्त काट रही होगी और उनका अपना ही खून पुल पर बह रहा होगा। और वो जिनके पास गुनाहों के बोझ से कोई नूर नहीं होगा, वो पहला कदम रखेंगे और अंधेरे में छुपे लोहे के कांटे सीधे हड्डियों में उतर जाएंगे। वो चीखें मारते हुए सीधा नीचे जहन्नुम की आग में जा गिरेंगे। दाएं बाएं से सिर्फ कट कर गिरने वालों की वहशत गूंजेगी। एक के बाद एक लाशें आग में गिर रही होंगी। कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन इस हौलनाक अंधेरे और चीखो पुकार के बिल्कुल आखिर में जन्नत के दरवाजे पर एक हस्ती खड़ी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी जान बचाकर जन्नत के अंदर जाने के बजाय जहन्नम के इस पुल के किनारे खड़े अपनी उम्मत का इंतजार कर रहे होंगे। उनकी जबान पर सिर्फ एक ही सदा होगी, या रब सल्लिम, या रब सल्लिम। ए मेरे रब उन्हें बचा ले, ए मेरे रब उन्हें सलामत रख।